a very warm welcome to one and all present here. Today, we all are gathered here to explore a fascinating journey where faith meets finance, an exhibition on religious tourism and its impact on economy. This event celebrates how spiritual journey connects heart and contribute to the economic and social life. Jai Shri Ram. Journeying into Ayodhya's legacy. The legendary city of Ayodhya holds a special place in Indian history and faith. यह वही पवित्र नगरी है जिसे रामायण में भगवान श्री राम की जन्मभूमि कहा गया है. It is considered one of the seven most important pilgrimage sites for Hindus. The Ayodhya Ram Temple stands as a true blend of spirituality, heritage, and Indian artistry. देश भर के कुशल कारीगरों ने अपनी मेहनत और कला से इस भव्य मंदिर को आकार दिया. Every pillar, sculpture, and carving tells a story of devotion and dedication. Pillars carved by Muslim artisans with skill and unity. यह विविधता में एकता का एक सुंदर उदाहरण है जहाँ धर्म से ऊपर कला और समर्पण को रखा गया. राम जी की मूर्ति प्रेम, भक्ति, शांति और संस्कृति की झलक लिए हुए है. The temple not only preserves ancient craftsmanship but also gives pride and livelihood to the artisans across the nation. आज का ये कहना बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नहीं है कि अयोध्या एक बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गया है. 22 जनवरी 2024 को अयोध्या उत्तर प्रदेश में राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ, जो सिर्फ एक रिलीजियस इवेंट ही नहीं, इंडिया की टूरिज्म और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत बड़ा कदम. इकोनॉमिक बेनिफिट्स. अयोध्या में टूरिज्म के बनने से हजारों लोगों को नौकरी मिली. अराउंड 21,000 temporary and permanent jobs have been created. सोशल एंड कल्चरल इम्पैक्ट. अयोध्या अब सिर्फ एक रिलीजियस जगह ही नहीं बल्कि स्पिरिचुअल एंड कल्चरल हब भी बन चुका है. यहाँ आने वाले लोगों से लोकल हैंडीक्राफ्ट, फूड और चाय से मनी कलेक्ट होती है जिससे लोकल इकोनॉमी और मजबूत हो रही है. क्या आप इमेजिन भी कर सकते हैं, राम मंदिर ट्रस्ट ने 272 करोड़ रुपए कुछ सालों में टैक्स के रूप में दिए हैं. Now I will tell you economic development before and after the construction of Ram Mandir for this table. जहाँ पहले कोई भी जॉब नहीं थी, अब 25,000 से ज़्यादा जॉब क्रिएट हुई है. टूरिज्म की संख्या में भी वृद्धि हुई है. महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट बनने के बाद यहाँ एयर पैसेंजर्स भी इंक्रीज हुए हैं जहाँ पहले कोई भी एयरपोर्ट नहीं था. You will be surprised to know how much taxes are earned from tourism. It is around 2,300 crore. इन सब से आपने राम मंदिर का इतिहास, वहाँ का डेवलपमेंट, रेवेन्यू के बारे में जानकारी प्राप्त की. अब मैं आपको इन टैक्सेस को कहाँ कहाँ पर यूज करते हैं उसके बारे में बताता हूँ. टेम्पल प्रोजेक्ट लाइक म्यूजियम यात्रियों के लिए डिफरेंट अरेंजमेंट करने में, अच्छी सुविधाएं देने में यूज होती है. The Ayodhya Ram Mandir is not just a temple, it's a movement. It has brought together faith, culture, and progress. It's creating jobs, boosting tourism, and inspiring millions. It stands as a shining example of how devotion can drive development and how a single place of worship can light up an entire nation's economy. Thank you for being a patient listener. Sat Sri Akal, and a very warm welcome to you. Today we are going to take you on our journey to our very own Harmandir Sahib, जिसे हम गोल्डन टेम्पल के नाम से भी जानते हैं, जहाँ धर्म और शांति साथ में मिलते हैं. It's more than just a holy site. It's a reminder that peace still exists in a noisy world. People from all backgrounds come here searching for something real. It teaches us that faith is not about religion, it's about connection. Now, let us take you to a very interesting journey of Harmandir Sahib. Now, I will let you know about historical background. गुरु रामदास जी ने इस पवित्र जगह की नींव रखी थी और गुरु अर्जन देव जी ने इसका निर्माण पूरा किया था. The four doors in Golden Temple represent that all people from every religion are warmly welcome here. तब से ये मंदिर एकता, दया और प्रेम का प्रतीक बन गया है. आर्किटेक्चरल ब्यूटी. मंदिर के ऊपर का हिस्सा शुद्ध सोने से बना है और नीचे सफेद मार्बल से. सरोवर के पानी में इसका प्रतिबिंब ऐसा लगता है जैसे प्रकाश और भक्ति एक हो गए हों. रात में यह मंदिर स्वर्ग जैसा चमकता है. Every detail in its design carries a purpose, calmness, balance and reflection. हर साल लाखों लोग यहाँ आते हैं जिससे अमृतसर की इकोनॉमी को नई रफ्तार मिलती है. होटल्स, शॉप्स और आर्टिजन्स सब इससे अपनी रोजी रोटी कमाते हैं. लंगर में हर दिन हजारों लोगों को मुफ्त का भोजन प्राप्त होता है. But its impact is beyond money. It fuels compassion-driven economy. Thousands of volunteers work daily keeping services alive. जो अमृतसर के लोकल वेंडर्स एंड आर्टिशियंस हैं वो सेल करते हैं अपना ट्रेडिशनल क्राफ्ट. फॉर एग्जांपल फुलकारी, पंजाबी जुत्ती, अमृतसरी पापड़ एंड मेनी मोर थिंग्स. Now I may take you to some key highlights.
annual tourism revenue, which gives a major boost to Amritsar economy through hotels, transport, and shopping. Yearly visitors are around 33 million. हम जानेंगे डोनेशंस कैसे यूज होती हैं। SGPC शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी डोनेशंस को मैनेज करती है और डोनेशन टेंपल की मेंटेनेंस के लिए यूज होते हैं। रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को भी फंड जाता है। द दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी रन्स 100 बेड डायलिसिस हॉस्पिटल जो कि फ्री में डायलिसिस मेडिसिन और इंजेक्शंस प्रोवाइड करता है। मैसेज ऑफ इक्वालिटी एंड ह्यूमैनिटी। यहाँ सब लोग एक ही पंक्ति में बैठकर लंगर खाते हैं बिना किसी जात और बिना किसी भेदभाव के। गुरु नानक देव जी ने कहा था, सब में एक नूर है। ये मंदिर दया और इंसानियत का पाठ पढ़ाता है। It's a lesson that humanity is the highest form of strength. When you sit on the floor beside a stranger, ego disappears. From where equality stops being a word and becomes a feeling. हरमंदर साहिब हमें ये भी सिखाता है कि सेवा सबसे बड़ी इबादत है। In the words of our beautiful Punjabi saying, जिथे जाए भाई गुरु दा नाम ओही सचदी था, which means wherever the Guru's name is remembered, that place becomes pure and true. The Golden Temple is not just visited; it's experienced. It leaves you softer, lighter, and more human. गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम एक ऐसे मंदिर के बारे में बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ भारत की भक्ति का प्रतीक नहीं, एक शानदार एग्जाम्पल है टूरिज्म और इकोनॉमी का भी। तिरुपति बालाजी टेम्पल। ये टेम्पल आंध्र प्रदेश की तिरुमाला हिल्स पर स्थित है। हर साल करोड़ों भक्त यहाँ पे भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन के लिए आते हैं। It's not just a place of worship, rather it's a symbol of duty, devotion and development. Now I'm going to tell you about the history of this temple. In the 12th century, the famous Vaishnava saint Ramanuja brought new life to its traditions, rituals and worship practices. तिरुपति बालाजी टेम्पल। यह मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल ही नहीं बल्कि एक एंशिएंट हेरिटेज साइट भी है। इस मंदिर का इतिहास 300 AD के आसपास से शुरू होता है। पल्लवा, चोला और विजयनगर जैसे राजवंशियों ने इसके निर्माण में अपना योगदान दिया था। इस मंदिर का आर्किटेक्चर साउथ इंडियन स्टाइल में बना है और हर स्टोन और कार्विंग एक कहानी कहता है डिवोशन की। लोग यहाँ अपने बाल भी डोनेट करते हैं। क्या आप लोग जानते हैं लोग यहाँ अपने बाल क्यों डोनेट करते हैं? कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ। ये एक सिंबल होता है सेक्रीफाइस ऑफ ईगो एंड ग्रेटिट्यूड टू गॉड का। इनफैक्ट इस टेम्पल के पास दुनिया का सबसे बड़ा ह्यूमन हेयर डोनेशन कलेक्शन है जो एक्सपोर्ट होता है, उससे भी रेवेन्यू जनरेट होता है। In the mid of 18th century, a special committee was formed named TDD. Tirumala Tirupati Devasthanam was officially established to look after the temple's operation. अब बात करते हैं इकोनॉमिक इम्पैक्ट की। तिरुपति बालाजी टेम्पल इंडिया के रिचेस्ट टेम्पल्स में से एक है, जिसका एनुअल डोनेशन अराउंड 3000 to 4000 करोड़ रुपीस तक का होता है। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम यानी TTD ये सिर्फ डोनेशंस कलेक्ट नहीं करता बल्कि उस वेल्थ को स्मार्टली यूटिलाइज भी करता है। TTD के पास हजारों किलो गोल्ड डिपॉजिट्स हैं जिन्हें वो इंडियन बैंक्स के गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम्स में इन्वेस्ट करता है। इससे देश की इकोनॉमी को लिक्विडिटी मिलती है, मतलब पैसे सिस्टम में सर्कुलेट होते रहते हैं। TTD ने मोर देन 20,000 लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट और हजारों को इनडायरेक्ट जॉब्स दी। Tourism attraction. Tirupati Balaji Temple is one of the biggest tourism attraction in India. हर साल यहाँ millions of devotees आते हैं, जिसकी वजह से पूरी तिरुपति सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर रैपिडली डेवलप हुआ। Do you know that more than 70% of Tirupati's local income depends directly or indirectly on temples tourism? TTD ने टूरिज्म को मैनेज करने के लिए बहुत से एडवांस सिस्टम्स बनाए, जैसे ऑनलाइन ट्रैकिंग, बुकिंग एंड क्राउड मैनेजमेंट। टेम्पल के आसपास और भी बहुत सारे स्पिरिचुअल टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, जैसे श्री गोविंद स्वामी टेम्पल। यहाँ पे टूरिज्म सिर्फ दर्शक तक सीमित नहीं बल्कि एक प्रॉपर कल्चर एक्सपीरियंस है जो हर कोई करना चाहेगा। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट दिस टेम्पल। यहाँ का फेमस तिरुपति लड्डू हर डिवोटीज के लिए स्पेशल प्रसाद है। इस लड्डू को GI टैग मिला हुआ है। इसका मतलब इसका बनाने का राइट सिर्फ टेम्पल के पास है। आप यह जानकर हैरान होंगे कि यहाँ हर दिन लगभग 3 लाख लड्डू बनते हैं और यह एक मेजर एम्प्लॉयमेंट सोर्स भी है। TTD का अन्नदान प्रोग्राम भी वर्ल्ड फेमस है। रोजाना यहाँ 1 लाख से ज्यादा लोग खाना खाते हैं। यहाँ के कारीगर गुड़क साड़ी एंड तुलसी माला बनाते हैं जिनकी डिमांड पूरे भारत में है। तो तिरुपति बालाजी टेम्पल सिर्फ एक मंदिर नहीं, एक इंस्पिरेशन है। It teaches us that when faith and effort come together, miracles happen. Today, this temple stands as a model of how spirituality can strengthen society and economy. जब लोग एक सही कॉज के लिए मिलकर काम करते हैं तो विकास अपने आप होता है। So let us take the inspiration from Tirupati Balaji Temple and build a nation जहाँ अपने प्रगति और संस्कार दोनों को साथ लेकर चल सके। Thank you everyone. जय बालाजी।
I am going to tell about lesson learned from Kumbh Mela. The Kumbh Mela reflect how people from different regions united, जिससे एकता और सहयोग की भावना मजबूत होती है. It teaches the value of devotion, आत्मिक शांति, and self-purification. The Kumbh Mela spread the message of harmony, equality, and solidarity. Kumbh Mela showcases teamwork, discipline, perfect coordination, जिससे यह सिद्ध होता है कि संपन्न और योजना से किसी भी विशाल आयोजन को सफल बनाया जा सकता है. When we visited the Kumbh Mela, it felt like witnessing the true spirit of India, जहाँ faith, culture and humanity एक साथ जुड़ते हैं. The divine energy of the place, millions of devotees taking holy dips, and the beautiful organization made us feel proud to be part of such a grand spiritual gathering. अगर आप भी कभी कुंभ मेला जाओगे तो you won't just see a spiritual gathering, but experience एक ऐसी जर्नी जो life changing है. Thank you so much for being a patient listener.